हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बीन गिवन अ ट्रायंगल KMN and there is a line perpendicular to MN which cuts KM at P and KN at Q. Okay, now it is given that KP by PM equals to 4 by 13 and KN equals to 20.4 centimeter. You have to find out KQ. You have to find out the length of KQ. This is the question. Pause the video, solve it for yourself, and then look at the solution. Now, it is given that Kp by Pm is equals to 4 by 13. Now, since these two lines are parallel, can I say that by basic proportionality theorem, Kp by Pm would be equal to Kq by Qn? Okay. Now, that means 4 by 13 is equals to Kq by Qn, or I have to find KQ, so I will keep KQ as it is और Qn के जगह मैं लिख सकता हूँ Kn माइनस KQ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Kn की लेंथ हमें दी हुई है, Qn की लेंथ हमें नहीं दी हुई है। सो आई कैन राइट 4 by 13 equals to KQ upon Kn minus KQ, or I can cross multiply and I will get 4Kn minus 4KQ equals to 13KQ, or 4 by 17 Kn equals to KQ. अब हम क्या करेंगे? Kn के जगह 20.4 दे दिया हुआ हमें सेंटीमीटर, वो पुट करेंगे एंड आई विल गेट KQ is equals to 4 by 17 into 20.4 centimeter, which is equals to 81.6 by 17 centimeter, or 4.8 centimeter. ओके, दिस इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है जो कि पैरेलल है, इसमें से एक एक ट्रायंगल का बेस है KMN का, और यहाँ का रेशियो हमें दिया हुआ है KP बाई PM, और हमें यहाँ का रेशियो जो है वो डिराइव कर लिया BPT से कि यहाँ का रेशियो भी 4/13 होगा, और इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, और ये रेशियो दिया हुआ है, तो आप इनकी लेंथ निकाल सकते हो। ओके, देयरफॉर आई नो KQ की लेंथ क्या होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, I have been given a triangle ABC and a parallel straight line to the base LM. Okay, now it is given that AL is x minus 3. This length is x minus 3. AC is 2x. So this is 2x AC. BM is x minus 2. So BM is x minus 2. And BC is 2x plus 3. So this BC is 2x plus 3. एंड मुझे चाहिए क्या? मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूँगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। I know that it is given that LM is parallel to AB, so by I can use BPT, basic proportionality theorem, और मैं क्या लिखूंगा? CL अपॉन LA इक्वल्स टू CM अपॉन MB। ओके, अब मैं क्या करूंगा? CL के जगह लिखूंगा CA माइनस LA। CL के जगह मैं लिख सकता हूँ, CL की लेंथ तो मुझे दी नहीं हुई है, तो मैं CL के जगह लिखूंगा CA माइनस LA इक्वल्स टू CM के जगह मैं लिख सकता हूँ CB माइनस MB।
then upon MB. Okay, now I know CA की लेंथ क्या है 2x. So now I will substitute 2x minus LA is x minus 3 upon x minus 3 equals to CB is 2x plus 3 minus MB is x minus 2 upon MB, which is x minus 2. So I get 2x minus x plus 3 upon x minus 3 equals to 2x plus 3 minus x plus 2 upon x minus 2, or x plus 3 upon x minus 3 equals to x plus 5 upon x minus 2. Now what I will do, I will cross multiply. So by cross multiplication, x plus 3 into x minus 2 equals to x plus 5 into x minus 3. Now I will open the brackets. I will get x square minus 2x plus 3x minus 6 equals to x square minus 3x plus 5x minus 15. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. LHS में है x माइनस 6, RHS में है 2x माइनस 15. तो इससे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 9. ओके, इसमें दिया क्या हुआ था, जो लेंथ थी वो x के टर्म्स में दी हुई थी. तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के रेशियो निकाला और वो x के टर्म्स में आया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया. नाउ next question is, this is a triangle PQR and I have a line parallel to RQ as ST. Okay, it is given that RT is 2 centimeter, TP is 3 centimeter, and QS is also 3 centimeter. You have to find out PS. यहाँ पे S होगा. You have to find out PS. इसकी लेंथ कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है. सो अगेन वी विल यूज BPT, वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इससे हमें क्या मिलेगा, RT अपॉन TP equals to QS upon SP. Okay, now if I put in the values, RT is 2, TP is 3, QS is 3 upon SP. By cross multiplication we get SP as 4.5 centimeter. This is what we wanted. Okay, so इतने बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दीज क्वेश्चंस डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी. ओके, आप कितना सोच सकते हो वो एबिलिटी ये क्वेश्चंस डेवलप कराता है. ये ट्रायंगल है और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गया. इसकी लेंथ 1.5 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 1.3 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी. नाउ आप देखो और आपको खुद समझ में आएगा बीपीटी से कि यहाँ रेशियो कितना है, 1:2 का है, तो यहाँ भी रेशियो कितना होगा, 1:2 का होगा. जब रेशियो 1:2 का होगा, ऊपर 1.3 दिया है तो नीचे कितना होगा, 2 इंटू 1.3 विच इज 2.6. तो इसमें तो पेन पेपर का भी यूज नहीं करना है. इट्स दैट सिंपल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव टू प्रूव. अब आगे आपको एक प्रूफ करना है कि the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. Okay, this is a triangle. इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसे बाइसेक्ट कर रहा है. तो मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ. लेट दिस बी ए बी सी
let the point of intersection of the parallel line be D and E. So I have been given that AD equal to DB. This is given. Also, TE is parallel to BC. This is also given. You have to prove that AE equals to EC. सो आप यहाँ देखो दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं DE और BC. सो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करो आप, एंड यू विल सी कि AD अपॉन DB equals to AE upon EC. Okay. Now I know that AD and DB are equal. So इनका रेशियो तो 1:1 आएगा. So this ratio here is 1:1. So this will also be 1:1. और जब ये 1:1 है तो ये लेंथ्स भी बराबर होंगी. That means AE and EC are equal. Hence proved. Okay. It's that simple. तो ये थ्योरम नहीं है. दिस इज अ आउटकम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. किसी ट्रायंगल में आपने एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो दूसरे साइड को भी इक्वल हाफ्स में कट करेगा. ओके. सो इन यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ACD, एक ट्रायंगल है APQ, दूसरा ट्रायंगल है APR. इन ट्रायंगल्स में हमें क्या फीचर दिया हुआ है. फीचर ये दिया हुआ है कि PQ is parallel to CB. This is parallel. Also, CD is parallel to PR. They are also parallel. Okay. अगर आप ध्यान से स्टडी करो सो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दो ट्रायंगल्स में लग सकता है. ट्रायंगल ACB में और ट्रायंगल ACD में, क्योंकि दोनों में एक साइड के किसी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और दूसरे साइड को वो कट कर रहा है. ओके. ACB में PQ है और ACD में PR है. ओके. अब आपको क्या करना है इसमें प्रूफ ये करना है कि AR by AD is AQ by AB. To prove AR by AD equals to AQ by AB. तो ये आप कैसे करोगे. आपको ये देखना है कि इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है विच इज AC, और इसी का हम आगे यूज करेंगे. सो हम क्या करेंगे, हमें पता है इन ट्रायंगल ACD PR is parallel to CD. Therefore, AR upon RD will be equal to AP upon PC. Let this be 1. Also, in triangle ACB, PQ is parallel to CB. Therefore, AP upon PC will be equal to AQ upon QB. 2. Now, from 1 and 2, we see that AP upon PC is common. So these two will be equal. So we have AR upon RD will be equal to AQ upon QB. ओके. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रूव करने के लिए AR upon AD.
तो हम आर डी को कैसे हटाएंगे? हम आर डी की जगह लिखेंगे ए डी माइनस ए आर। वैसे ही हम क्यू बी की जगह लिखेंगे ए बी माइनस ए क्यू। ओके, तो हम आर डी की जगह लिखेंगे ए डी माइनस ए आर। सो वी विल राइट ए आर अपॉन ए डी माइनस ए आर will be equal to AQ upon AB minus AQ। डन। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और सॉल्व कर देंगे। वी विल गेट AD माइनस ए आर अपॉन ए आर इक्वल्स टू AB माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू, और AD अपॉन ए आर माइनस वन equals to AB upon AQ minus 1, which gives me AD upon AR equals to AB upon AQ। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लो। What you will get? You will get AR upon AD will be equal to AQ upon AB। This is what we had to prove. Okay, hence proved. These questions are very basic in nature, but they are building up a kind of thinking ability in you with respect to the basic proportionality theorem। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चंस को आप करें। ये आपको आर डी शर्मा बुक में मिल जाएगा, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।